Hello students, today we are going to start again a new lesson. Okay, it will be lesson number 16 and the title of our chapter is Our Goals, Rights and Duties. Now open your books at page number 105. So children, in this chapter what we are going to learn about? In this chapter we are going to learn about our goals, rights and duties as citizens of our country. So अपनी country की एक responsible citizen होके what are our goals, what we have to attain. Goal means whatever the target it may be. देखो goals का meaning sports में अलग होता है, अपनी life में हमको भी एक goal होना है which we want to attain. And being a citizen of our country, being a citizen of any country, what our main goals are, what we have to attain, what are our rights, अपना क्या rights है अपनी country में, how can we enjoy our rights, and duties, what are our duties towards our country, है ना, towards our motherland, what are our duties. We are just going to learn about all these three things in detail in this chapter. Is it okay children? Because being a अपन एक country में रहते हैं, if we are a responsible citizen of a country, आपको एक country में रहने के लिए आपके लिए कुछ fundamental rights भी दिए हैं, जो basic rights है, जो हर किसी इंसान तक पहुंचते हैं और सब कुछ वो use कर सकते हैं. In the same way, as a citizen of a country, we have some responsibilities too, some duties too, which we have to do. And in the same way, what are the goals that we have to attain? So we are going to discuss about all these. So firstly, see the first step that is given here in the space given below. List two rules that you follow in your school. So children, here we can see some space given below and rule 1 and rule 2. So what you are going to write there is list two rules that you follow in your school. Okay, so children, we used to follow so many rules at our school, isn't it? We have to follow so many rules, है ना. बिना rules के अगर हो तो सब अपने हिसाब से चलेंगे नहीं. हर स्कूल की, हर इंस्टीट्यूशन की कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं. So we always used to follow some particular rules in our school also. Just think about all those, है ना. What are the rules that we are following in our school? And you have to write any two selected rules you can write. जैसा कि आप yes रूल्स की हिसाब से सोचो तो आप क्या लिख सकते हो. We have to be on time at school, है ना. And what are the rules that should be followed over there after entering the school? What are the rules, how you can enter into a school, how you should be dressed. बहुत सारे points है, आप सोचिए. And you can do on yourself. Just write any two rules what you have to do about your proper uniform हो, कुछ भी rules जो आप उधर follow करते हो. Now moving ahead into the chapter, let us start now. In every school, it is the duty of all students to follow certain rules, isn't it? In every school, whatever the school it may be, in any school there are certain rules. कुछ prescribed rules रहते हैं सब बच्चों को follow करने के लिए. एज स्टूडेंट्स, मतलब बीइंग अ स्टूडेंट्स, दे ऑल्सो एंजॉय सर्टेन बेनिफिट्स, है ना. आप कुछ बेनिफिट्स भी एंजॉय कर सकते हो. आप अगर एक स्कूल की स्टूडेंट हो तो उस स्कूल की कोई भी फैसिलिटीज़ है वो सब आप यूज़ करेंगे. आप अपनी स्कूल बस यूज़ करते हो, आपकी ग्राउंड में स्लाइड, स्विंग्स, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, वट एवर द थिंग्स दैट आर देयर इन योर स्कूल. आपकी म्यूज़िक रूम की म्यूज़िक में भी जाएंगे तब आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. आपके ग्राउंड में वट एवर द sport items that are there, you can use all these. फॉर एग्जाम्पल एक्सेस टू वेरियस फैसिलिटीज़ एंड सिक्योरिटी, है ना. एग्जाम्पल मतलब आपको एक्सेस इजीली आप अप्रोच हो सकते हो किसके लिए, वेरियस फैसिलिटीज़, वट एवर द फैसिलिटीज़ दैट आर देयर इन योर स्कूल, एंड सिक्योरिटी, एंड इवन द सिक्योरिटी फैसिलिटीज़ विच एवर आर गिवन फॉर यू. सो यू कैन एन्जॉय ऑल दिस. ये सब आपको बेनिफिशियल है. जब आप उस स्कूल की स्टूडेंट हो तो यू कैन सर्टनली, मतलब डेफिनेटली यू कैन एन्जॉय वट एवर द बेनिफिट्स दैट आर गिवन बाय द स्कूल. येस, you can use those benefits. The benefits that students enjoy are called their rights. So जो भी benefits आप enjoy कर रहे हो उसको आप बोल सकते हो कि ये हमारा right है, because this is your school. Yes, you can sit in any classroom, है ना, or else the prescribed classroom. You can go to the computer room, computer lab whenever your computer turn comes out. And इसके अलावा भी जैसा science laboratory है, yes, if you have to do some practical, you can go over there, you can use the equipment and
handle them carefully and you can use that, but no other student or no any passerby can come over into our school and they can use those. कैन दे यूज़, वो यूज़ कर सकते हैं क्या? कोई भी उधर से जो जा रहे हैं वो तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ही इज़ नॉट अ स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल एंड आवर स्कूल डजेंट अलो हिम टू कम इन. So being a student of a school, you are enjoying certain benefits. आप कुछ चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, एक्सेस आप वो सब आपके लिए एक्सेसिबल है, इजीली अप्रोचेबल है, अटेनेबल है आपके लिए. सो डेफिनेटली यू आर यूजिंग ऑल दीज थिंग्स. सो जो भी थिंग्स आप यूज़ कर रहे हो, वट एवर दैट यू आर यूजिंग, अपने प्लेग्राउंड में आप खेल सकते हो, बास्केटबॉल यूज़ करेंगे, फुटबॉल यूज़ करेंगे, जो भी आइटम्स है वो स्लाइड, स्विंग, ये सब आप यूज़ करते हो, है ना. अभी अपना ATL लैब है, इफ़ यू आर इन हायर क्लासेस यू कैन गो ओवर देयर, क्या हो रही है, कैसा हो रही है, वो भी आप देखते हो, उधर से भी आप कुछ सीख सकते हो, बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल एंड यू हैव दोज फंडामेंटल राइट्स, यू हैव दैट राइट टू यूज़ ऑल दिस. सो ऐसा जो चीज़ें से आपको बेनिफिट आ रही है या जिसको आप यूज़ कर रहे हो, इसी को हम राइट्स बोलते हैं. व्हाट वी विल कॉल चिल्ड्रन, दीज आर कॉल्ड योर राइट्स एंड द रूल्स दैट दे आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो और नोन एज देयर ड्यूटीज़. सो ये सब जब भी आप यूज़ करते हो, यूज़ करते टाइम आपको कुछ रूल्स भी फॉलो करनी है. विदाउट फॉलोइंग एनी रूल्स आपको स्कूल भी अलो नहीं करेगी कि ये सब आप कर सकते हो, है ना. सो जो भी रूल्स आपको फॉलो करनी है, दे आर नोन एज योर फंडामेंटल ड्यूटी, दे आर नोन एज योर ड्यूटीज. सो वट एवर द बेनिफिट्स दैट यू आर एंजॉइंग आर नथिंग बट द rights, and what are the rules that you have to follow before using those benefits are nothing but the duties. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव प्लेग्राउंड में बैठे हैं और बास्केटबॉल को मैं कुछ भी करूँगा, मतलब उसको ख़राब करेंगे, फेंकेंगे, इधर उधर करेंगे, नहीं, नेक्स्ट टाइम यू वोंट बी अलाउड टू डू दैट, बिकॉज इट इज़ नॉट योर, यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स इफ़ यू वांट टू प्ले. इसी कंप्यूटर लैब में गए, हाँ मैं गेम खेलूँगा या कुछ भी करूँगा, कोई छेड़छाड़ कर रहे हो वायर से, माउस को, कीबोर्ड को नीचे पटकाऊंगा, कैन एनीवन say okay for that? No, है ना. That is not good. You have to go in a line, you have to use your equipment properly, and whatever the instructions given by the teacher, you have to follow those and you have to do that particular task itself. ऐसा नहीं कि मैम इधर मैं गाना लगाऊंगा अभी डांस करेंगे, नहीं. when it is your music period, there you can do that, but in order to utilize everything you have to follow certain rules also. असेंबली में आना है, ठीक है, मैं असेंबली में बैठ के असेंबली करेंगे, ऐसा no. Nobody will allow you to do like that. Yes, you have to stand in a correct position, you have to stand over there and you have to follow whatever the steps that we follow in our assembly, step by step. In the same way, आप ATL lab में गए हैं, yes, the teacher will provide you some instructions. वो बोलेंगे yes, you are going to do this particular practical, this particular equipment use करके हम कुछ करेंगे. So you have to focus only on that. ऐसा नहीं कि मैम ये मैं घर ले जाऊँगा, they won't allow you to take it to your home. You have to use it there and you have to take care of your belongings also. अपनी belongings and school की belongings का भी take care करना बहुत ज़रूरी है. Means in while using anything, while using your rights, you have to follow certain rules too. So that rules are nothing but your duties. सिमिलरली इन द सेम वे, जैसा एज अ स्टूडेंट आपकी स्कूल में आपके लिए कुछ राइट्स भी है एंड यू हैव टू फॉलो सम रूल्स टू. इन द सेम वे द पीपल हु लिव इन आवर कंट्री हैव सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज. इन द सेम वे कोई भी पीपल को, जो कोई भी लोग जहाँ भी रहते हैं, उनके लिए कुछ सर्टेन रूल्स और सर्टेन रूल्स भी है एंड सर्टेन rights भी है. rights are the benefits and the rules are the duties to be followed. duties are the rules to be followed. These ensure the well-being of all the people in the country. so इससे क्या होता है, सब उसको एक proper way में use कर सकते हैं. इसी में country की, कोई भी country की welfare है, well-being है, upbringing अच्छा हो सकता है इससे. so that if everybody follow a particular rule and if we go on, it will whatever the progress that will take प्लीज इट विल गो ऑन वेरी स्मूथली. एक अच्छी प्रॉपर तरीके से वो काम चलता है. सो दिस विल एंश्योर, दिस विल गिव अ श्योरिटी फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पीपल, ताकि हर पूरा देश में जो भी लोग हैं सबके लिए अच्छा होगा. In this chapter, so today in this chapter what we are going to learn, we will study about them in detail. So in this chapter we are going to just know about the fundamental rights and fundamental duties that every citizen of our country should have and should use, है ना. इसके बारे में हमको in detail explanation
देंगे। ओके बेटा, द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री हैव बीन रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो वेयर इट इज रिटन, सो हर कंट्री का, जैसा अभी वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट आर कंट्री, सो इन आर कंट्री द राइट्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट पीपल कैन यूज, एंड ड्यूटीज, व्हाट आर द रूल्स दैट शुड बी followed while using these benefits. All these have been written एक written completely लिखा हुआ बुक में है, what it is a written been written in the constitution of India. अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने की बुक है, जिसमें ये सब लिखा हुआ कि किस जगह कैसा कैसा रूल्स फॉलो करना है और हर कंट्री के सिटीजन्स को क्या बेनिफिट्स दिया जाता है। तो बेनिफिट्स दिया कि मतलब ये नहीं है ना, जैसा मैंने बोला, आप कंप्यूटर लैब में गए हो, यू कैन यूटिलाइज दैट फॉर ए पर्टिकुलर टास्क एंड यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क एंड यू हैव टू हैंड ओवर इट टू योर टीचर इन दैट वे। सो ऐसा कुछ रिटर्न आर्टिकल्स है, बहुत सारा आर्टिकल्स, मतलब हर जैसा कंप्यूटर लैब के लिए आपका कुछ अलग रूल्स होते हैं, असेंबली में अलग रूल्स, प्लेग्राउंड में अलग रूल्स, इन द क्लासरूम हाउ यू हैव टू बी एंड हाउ यू हैव टू फॉलो द रूल्स। इन द सेम वे आपको जैसे म्यूजिक रूम में गए हो तो कैसा रहना है, हर जगह आपको पर्टिकुलर रूल्स दिया जाता है। सो व्हाट आर दोज इन द सेम वे अपना सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए भी इन सो मेनी एस्पेक्ट्स, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस दिया है। जैसा व्हाट आर द राइट्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट यू कैन यूज दैट आर प्रोवाइडेड फ्रॉम द गवर्नमेंट से जो भी फैसिलिटीज मिला उसको कैसे यूज करेंगे, एंड व्हाइल यूजिंग दोज व्हाट आर द रूल्स दैट शुड बी फॉलो टू यू। सो ये सब कहाँ पे है, किसने ये सब बनाया, जैसा अपने स्कूल की रूल्स एंड रेगुलेशंस, इट विल बी इंस्ट्रक्टेड टू यू बाय द टीचर्स, बाय द मैनेजमेंट। जब बिफोर आपकी एडमिशन है, हाँ यू हैव टू फॉलो पर्टिकुलर दिस रूल दैट रूल, या जो भी टीचर्स आपको पर्टिकुलर कंसर्न अथॉरिटी आपको इन्फॉर्म करते हैं एंड आप फॉलो करते हैं। बट इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज कंट्री, इतना बिग कंट्री, एंड वी हैव सो मेनी क्रोर्स ऑफ पॉपुलेशन। सो अपने लिए ये सारे रूल्स एक अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। सो व्हाट इट इज चिल्ड्रन, वेयर दिस ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ द पीपल आर रिटन in the Constitution of India, Constitution. So now the first doubt that can arise is, what is a constitution? Constitution क्या होता है मैम? A constitution is the basic set of laws according to which a country is governed. So what is a constitution? Constitution is nothing but it is a basic set of laws. कुछ laws बना के रखते हैं कि yes, the people in a country have to follow these particular rules. Yes, they have to go on like this, they have to move on like this, they can utilize this, they cannot utilize that. ऐसा कुछ particular laws बना के रखे हैं अपने लिए, so that पूरा कंट्री में, नहीं तो इतने सारे पॉपुलेशन को कैसा कंट्रोल करें। एक एक क्लास में हम जैसा डिविजन्स किए थे, एक एक क्लास अलग अलग सेक्शंस, एक एक क्लास के क्लास टीचर, इन द सेम वे अपनी कंट्री में भी बहुत सारे स्टेट्स, फिर इस स्टेट्स का भी अलग अलग चीफ मिनिस्टर, देन उनकी एमपीज, एमएलएस, फिर लोकल लीडर्स, ये सब एक एक चीज़ का कुछ रूल्स फॉलो करके ऐसा ऐसा चलना है करके एक स्टेप वाइज प्रोसीजर अपना सबके लिए है। इन द सेम वे इतनी बड़ी कंट्री गाइड को गवर्न करने के लिए वी डेफिनेटली नीड सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस एक सेट ऑफ लॉस आर नथिंग बट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी अपनी गवर्नमेंट से दिया है। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया you can use this and you have to follow these particular rules. So constitution is a basic set of laws, एक basic set of laws है according to which उसको follow करते हुए ही वो country govern होगी, मतलब every citizen of the country should follow these particular rules. So the Constitution of India came into effect on 26 January 1950. So children, every one of you are aware of this fact that our country got independence in 1947 है ना। 1947 में इंडिपेंडेंस तो आया, वी बिकम फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल से हम फ्री हो गए। आफ्टर दैट अपनी कंट्री को कैसा करनी है, कैसा गाइड करनी है, सब लोगों को कैसा एक जैसा हमको इस कंट्री को आगे बढ़ाना है, इसके लिए कुछ बड़े बड़े लीडर्स सब मिलके अपने पूरा गवर्नमेंट अलग से फॉर्म हुआ। वो गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद उन्होंने ये सारे सर्टेन सेट ऑफ रूल्स सब बनाए थे। उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ, वो इफेक्टिवली कब रेडी होके अपने पास पहुंची है, मतलब व्हेन इट केम इनटू इफेक्ट, मतलब कब से ये यूज़ करना या यूटिलाइज करना या ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन वर्क ऑन करना स्टार्ट हुआ, कब से? फ्रॉम 26 जनवरी 1950। 1950 में मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस 3 इयर्स के बाद 26 जनवरी एंड 1950 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल
उसी दिन से इफेक्टिवली वर्क ऑन करना स्टार्ट हुआ है, मतलब आर कॉन्स्टिट्यूशन इज रेडी एंड कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स उन्होंने बनाया ये सब रेडी करके फ्रॉम द डेट ऑफ 26 जनवरी एंड इन द ईयर ऑफ 1950 आर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू पावर. सो 26 जनवरी व्हाट वी यूज टू सेलिब्रेट ऑन 26 जनवरी, इट इज़ नथिंग बट द रिपब्लिक डे. मतलब जब से अपनी कॉन्स्टिट्यूशन एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स अपनी ये सब रेडी होके आए हैं, दैट्स वाई वी यूज टू सेलिब्रेट 26 January as our Republic Day. Is it okay, children? So kindly go through till here because it is a new topic and a new concept for you and which is very useful. So kindly go through this and try to understand this. Thank you.